ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کوکب فاروقی۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ہم نہیں جانتے کہ کرفیو اٹھانے کے بعد کیا ہوگا، وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان کی بھی ہم منصب جسنڈرا آرڈرن سے ملاقات۔ آزاد کشمیر میں زلزلے کے آفٹر شاکس، جاں بحق افراد کی تعداد 31 ہو گئی۔ زلزلے میں سب سے زیادہ جاتلا متاثر ہوا ہے، چیئرمین این ڈی ایم اے۔ چودھری ملز کیس، نیب نے مریم نواز اور یوسف عباس کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کر دی۔ جالوں کو روکا ہوا ہے لیکن جنوری کے بعد ان کو نہیں روکیں گے، بلاول بھٹو زرداری۔ حکومت کسی معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے، طلال چودھری۔ نیب فیس نہیں بلکہ کیس دیکھنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، چیئرمین نیب۔ سری لنکن ٹیم کی کراچی آمد۔ ٹروڈو کا 2022 میں کینیڈا کی تمام عمارتوں میں ماحول دوز بجلی کے استعمال کا اعلان۔ اینڈریو شیئر کا چھوٹے کاروبار پر ٹیکس کم کرنے کا وعدہ۔ متنازع تصویر کے معاملے پر ٹروڈو کا جگمیت سنگھ کو فون۔ ایٹوبیکاک کے علاقے میں فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص ہلاک۔ عالمی تجارتی تنظیم میں یکسر تبدیلی کی ضرورت ہے، صدر ٹرمپ۔ امریکی اسپیکر ایوان نمائندگان کا صدر ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی کا اعلان۔ کشمیر کا درد ہمارے وجود کا درد ہے، ترکی ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے، ترک صدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس شارٹ بریک کے بعد۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے نیو یارک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ کیوبا بحران کے بعد پہلی بار دو ایٹمی طاقتیں پاکستان اور بھارت آمنے سامنے ہیں۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے دو ٹوک کہا ہے کہ یہ وقت ہے کہ دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ کیوبا بحران کے بعد پہلی بار دو ایٹمی طاقتیں پاکستان اور بھارت آمنے سامنے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ کرفیو اٹھنے کے بعد کیا ہوگا، لیکن قتل عام کا خدشہ ہے۔ 80 لاکھ لوگ کشمیر میں محصور ہیں، اس سے بڑی اور ریاستی دہشت گردی کیا ہوگی۔ نیو یارک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ کیوبا بحران کے بعد پہلی بار دو ایٹمی طاقتیں پاکستان اور بھارت آمنے سامنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاملات کو معمول پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ سیکیورٹی کونسل اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرا سکی، جس کی وجہ سے کشمیری متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے مسئلے پر بات نہیں کر سکتا۔ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد میں نے فوری طور پر صدر روحانی سے ملاقات کی۔ The main reason I came to attend the United Nations General Assembly was to highlight the plight of people of Kashmir. There are a lot of problems. We are trying to fix a lot of things. Pakistan faces challenges, and so therefore I would not really have come out at this time. But I came out to New York only because I felt that unless we highlight what is going on in Kashmir, the world is not going to know. Neither will the people know the oppression that is going on, nor will the world understand that this is just the beginning. It's going to get worse, and there's a potential that two nuclear armed countries will come face to face at some stage. So hence I felt that it is extremely important that we highlight what is happening in Kashmir amongst the world leaders and a forum like the United Nations General Assembly. Today, 50 days
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी पर आलमी खामोशी मायूस कुन है। अगर दो एटमी ममालिक में जंग हुई तो असरात पूरे खत्ते पर पड़ेंगे। इमरान खान ने कहा कि कर्फ्यू हटेगा तो कश्मीरियों का क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या वो भारतीय सरकार के इकदाम के खिलाफ खामोश रहेंगे। तुर्क सदर की जानिब से जनरल असेंबली खिताब में मसला कश्मीर उजागर करने पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद पर तुर्क सदर के शुक्रगुजार हैं। इमरान खान ने कहा कि तुर्की से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तुर्क सदर आइंदा माह पाकिस्तान आएंगे। जैसे ही मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू हटेगा, मोदी को भी सूरत हाल का अंदाजा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में सिर्फ इसलिए पाबंदियां लगाई गई क्योंकि वहाँ मुसलमान हैं। मकबूजा कश्मीर में हिंदू आबादी पर कोई सख्ती नहीं हो रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों से यकजहती के लिए मुस्लिम ममालिक को आवाज़ उठाना होगी। The biggest worry is what happens once the curfew is lifted. We fear with 900,000 soldiers there will be a massacre. And that's also what we are trying to tell the world community, that they must act on it. And my other fear is that India, for whatever is happening in Kashmir, will blame on Pakistan. Last February, there was a Kashmiri boy who blew himself up on an Indian military convoy. The parents of the boy said that he was radicalized by the security forces on some checkpoints or something. Nothing to do with Pakistan. Yet Pakistan was immediately blamed for it. I went on air and said, if you give us any proof that Pakistan is involved, we'll take action. Before any proofs could come, the Indian jets arrived. They bombed us. In retaliation, Pakistani jets went and bombed India. On their way back, they were chased by 2 Indian jets who were shot down. आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, वजीर आज़म इमरान खान ने अपने कीवी हम मनसब जसिंड्रा ऑर्डर्न से मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इस्लाम और मुस्लिम मुखालिफ जज्बात के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जैसिंडा आर्डर्न से मुलाकात की। वज़ीर आज़म इमरान खान इन दिनों अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए अमरीका में मौजूद हैं। इस दौरान वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं और अब तक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, तुर्क सदर तैयब उर्दवान, ईरानी सदर हसन रूहानी, मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी और एथियोपिया की सदर समेत कई सरबराहान मुमलिकत से मिल चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी कीवी हम मनसब जैसिंडा आर्डर्न से मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इस्लाम और मुस्लिम मुखालिफ जज्बात के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इमरान खान ने वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड को मकबूजा कश्मीर के शहरियों की अबतर हालत से आगाह करते हुए बताया कि मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू उठते ही बहुत बड़ा बहरान मंजर-ए-आम पर आएगा। वज़ीर आज़म ने रवां साल न्यूजीलैंड की 2 मसाजिद पर हमलों के बाद जैसिंडा आर्डर्न की क़यादत के इक़दामात को सराहा। खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स जारी हैं, जबकि जाँ बहक अफराद की तादाद 31 हो गई और 452 अफराद ज़ख्मी हैं। जातला का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि मंगला जाने वाली मरकजी शहरा और मुतादिद पुल ज़मीन बोझ हो गए हैं। आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स जारी हैं, जबकि जाँ बहक अफराद की तादाद 31 हो गई और 452 अफराद ज़ख्मी हैं। आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के मज़ीद झटके महसूस हुए हैं, जिसके बाद लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। खौफ के बायस मर्दों ने सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट पर सारी रात जाग कर गुजारी, जबकि ख़वातीन और बच्चों ने मुकामी पार्कों में पनाह ली। ज़िला इंतज़ामिया मीरपुर के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले से जाँ बहक अफराद की तादाद 31 हो गई और 452 अफराद ज़ख्मी हुए। जातला का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि मंगला जाने वाली मरकजी शहरा और मुतादिद पुल ज़मीन बोझ हो गए हैं। ज़लज़ले से मुतासिरा इलाकों में शहरियों को मसाइब का सामना है। लोगों के घर और कारोबार तबाह हो गए, जबकि अब तक बिजली बहाल न की जा सकी। खंबे और ट्रांसफार्मर जमीन पर गिरे हुए हैं, जबकि पीने के पानी की भी शदीद किल्लत हो गई। ज़ेरे ज़मीन पानी भी गदला और नाकाबिले इस्तेमाल हो गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है कि जातला ज़लज़ले में ज़्यादा मुतासिर हुआ। ज़लज़ले के बाद 450 घर मुतासिर हुए। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
एनडीएमए के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है कि ज़लज़ले के बाइस मीरपुर में 24 अफराद और झेलम में एक शख्स जाँ बहक हुआ। पाक आर्मी की 20 मशीनें सड़क की बहाली का काम कर रही हैं। तफसीलात के मुताबिक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है कि जातला कल ज़लज़ले में ज्यादा मुतासिर हुआ। ज़लज़ले के बाइस मीरपुर में 24 अफराद और झेलम में एक शख्स जाँ बहक हुआ। ज़लज़ले के बाइस 450 घर मुतासिर हुए। चेयरमैन एनडीएमए का कहना था कि ज़लज़ले से 135 घर बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। जातला तकरीबन 14 किलोमीटर की सड़क मुतासिर हुई है। पाक आर्मी की 20 मशीनें सड़क की बहाली का काम कर रही हैं। CNDW की 16 मशीनें भी काम कर रही हैं। तकरीबन 14 किलोमीटर के करीब जो सड़क है वो बुरी तरह मुतासिर हुई है। मैं आपको ये भी कंफर्म कर देता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के जो मशीनी दस्ते हैं उनकी तकरीबन 20 मशीनें जो हैं वो काम कर रही हैं सड़क के ऊपर। मैं ये भी आपको कंफर्म कर देता हूँ कि 16 के करीब मशीनें जो हैं वो लोकल CNW डिपार्टमेंट जो है उसकी भी सड़क पे काम कर रही हैं। 3.5 किलोमीटर का एरिया जो जातला के करीब था उसको ऑलरेडी क्लियर कर लिया गया है और मुझे उम्मीद ये है कि अगर आज शाम तक नहीं तो कल शाम तक ये सड़क जो है इस काबिल हो जाएगी कि इसके ऊपर लाइट ट्रैफिक जो है वो चल सके। उन्होंने कहा कि आज शाम तक सड़क हल्की ट्रैफिक के लिए काबिल इस्तेमाल हो जाएगी। पाक फौज समेत दीगर इदारे इमदादी कामों में मसरूफ हैं। साफ पानी और खाने पीने की अशिया आज शाम तक पहुंच जाएंगी। इमदादी अशिया की जरूरत पड़ी तो हम मोबाइल नंबर फराहम करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना था कि जिन सफीरों ने राब्ता किया उन्हें फिलहाल कहा है कि इमदाद की जरूरत नहीं, मुतासरीन को जरूरी अशिया फराहम की जा रही है। पाक फौज आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ टीम की तरह काम कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो अभी तक 200 बड़े फैमिली टेंट्स अलॉन्ग विद 200 किचन सेट्स, 4 कंबल फी टेंट, ये अभी एट द मोमेंट जो है वो यहाँ पे जड़ी कस जगह है, कंटोनमेंट में है और वहाँ से अभी रवाना होकर यहाँ तक पहुँच जाएंगे। मैं आपको ये भी कंफर्म कर देता हूँ कि 50,000 के करीब पानी पीने की बोतलें शाम 4 बजे के लगभग AC जातला के पास इंशाल्लाह पहुँच जाएंगी। कुछ बात करेंगे एहतसाब अदालत ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास के मजीद रिमांड की नैब की इस्तदा कर दी है। अदालत ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पर कोर्ट लखपत जेल भेजने का हुक्म दे दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास के मजीद रिमांड की नैब की इस्तदा कर दी। अदालत ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पर कोर्ट लखपत जेल भेजने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक एहतसाब अदालत में चौधरी शुगर मिल्स केस की समाअत हुई। नैब ने मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया। एहतसाब अदालत के जज अमीर मोहम्मद खान ने केस की समाअत की। कमरा अदालत में नारेबाजी पर जज ने इजहार बरहमी किया। नैब ने मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास के जिस्मानी रिमांड में मजीद 15 रोजा तौसी की इस्तदा करते हुए कहा कि मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास से मजीद तफ्तीश दरकार है। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास के खानदान की जायदाद की तकसीम के मुआहदे का इंकशाफ हुआ है। शेयर्स नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अब्बास शरीफ, बहन कौसर और वालिदा शमीम बेगम में तकसीम हुए। SECP रिकॉर्ड के मुताबिक चौधरी शुगर मिल्स के शेयर्स 2 करोड़ 62 लाख रुपए थे। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि दौरान तफ्तीश 1 करोड़ 16,96,000 रुपए के शेयर्स का फर्क आया है। मज़कूरा शेयर शहबाज शरीफ के खानदानों के असासों में शामिल नहीं थे। एहतसाब अदालत ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास के मजीद रिमांड की नैब की इस्तदाद कर दी। मरियम नवाज ने दौरान समाअत कहा कि कोर्ट लखपत जेल में खवातीन की बैरक है, वहाँ भिजवा दिया जाए। अदालत ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पर कोर्ट लखपत जेल भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास का 9 अक्टूबर तक जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। सक्खर से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, सक्खर में मीडिया और कारकुनों से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जियालों को रोका हुआ है लेकिन जनवरी के बाद उनको नहीं रोकेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जनवरी तक इस कठपुतली हुकूमत को खत्म न किया तो मुल्क फिर से जाले रावलपिंडी पहुंचेंगे। कोई डील नहीं हो रही, डील करने वालों पर लानत भेजता हूं। सखर में मीडिया और कारकुनों से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जालों को रोका हुआ है, लेकिन जनवरी के बाद उनको नहीं रोकेंगे। उन्होंने कहा कि जनवरी में इसी पिंडी में पहुँच कर दिखाएंगे जहाँ पर पीपल्स पार्टी का ट्रायल होता है, वही पिंडी जहाँ जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया। चेयरमैन पीपीपी ने मजीद कहा कि फरियाल और आसिफ जरदारी पर झूठे मुकदमात बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब खुर्शीद शाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये भी कहना था कि मौलाना फजल रहमान के एहतजाज में शिरकत पर बात कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए पीपल्स पार्टी का लाए अमल अलग होगा। कुछ बात करेंगे। तलाल चौधरी ने हुकूमत को हतफे तनकीद बनाते हुए कहा है कि डेंगी हो या कश्मीर, ये किसी जगह सीरियस नहीं। इस वक्त डेंगी से लेकर कश्मीर तक कोई चीज़ उनके कंट्रोल में नहीं। उनके लिए हर चीज़ शुगल और मजाक है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि ज़लज़ला ज़दगान की बात हो, मसला कश्मीर हो या डेंगी का मामला, हुकूमत किसी जगह सीरियस नहीं है। उनके लिए हर चीज शुगल और मजाक है। लाहौर में नैब अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना था कि कल सरकारी तर्जुमान ने मेकअप के साथ ज़लज़ला ज़दगान की तजलील की है। तलाल चौधरी ने हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि डेंगी हो या कश्मीर, ये किसी जगह सीरियस नहीं है। इस वक्त डेंगी से लेकर कश्मीर तक कोई चीज इनके कंट्रोल में नहीं। इनके लिए हर चीज शुगल और मजाक है। रहनुमा नून लीग ने कहा कि ये नाअहल, नालायक और सेलेक्टेड हैं। इन्होंने पंजाब को तबाह बर्बाद कर दिया है। लोग शहबाज शरीफ को मिस कर रहे हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि आज पाकिस्तान में महंगाई उरूज पर है, जबकि स्टॉक एक्सचेंज जमीन बोस हो गई है। ये लोग कठपुतलियां हैं। इनसे कश्मीर, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मसाइल हल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि हकीकी क़यादत ही मसाइल को हल करेगी। लोग आज नवाज शरीफ को याद कर रहे हैं। इमरान खान को लाने में हिस्सा डालने वाले कौम से मुआफी मांगे। तलाल चौधरी ने कहा कि ये सियासी जमातों को अवामी मिजाज देखकर फैसले करने पड़ेंगे। अगर सियासी पार्टियां फैसले नहीं करेंगी तो लोग खुद धरने में पहुंच जाएंगे। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।